आज ड्रग्स एडिक्ट का दिन है। तो सारे साथियाँ हमारे ट्रस्ट की जानिब से और स्टेशन की जानिब से मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಿದು ತುಂಬ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗಳು ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನೇನಾದರೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಡಿ.ಜೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ದಾಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಏನೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅರಿವಿದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಇಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನು ಮಾದಕ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಂಥದ್ದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫಲಪಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೈಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಯಾರು ಈ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಇದರ ಗಾಂಜಾ ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಗಾಂಜಾ ಏನಿದೆ ಇಂಥ ಯಾರನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನೋ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
हम मोहम्मद हाँ वहाँ जाने का भूत है चलो हमें निकलने का देखो ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋರು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೋಡಲ್ಲಿ. ನಮಗಿಂತ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. हाँ क्या माँ? अब जो हमें निकलते जो रास्ते में जाते हैं हमें पूरे डिसिप्लिन के साथ जाना, या पूरे हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होना. समझ में आ रहा है? तो हमें पूरे जैसा यहाँ से लाइन बनाती है, इसी लाइन के हिसाब से एक के पीछे एक होते हुए हमें आगे बढ़ना. जहाँ पे रुकने के लिए बोलते वहाँ पे रुकना, जहाँ पे चलने के लिए बोलते वहाँ पे चलना, और शरारत नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, बात नहीं करना. खामोशी के साथ नारे जो भी अगर लगाए स्लोगन से उसे बोलते हुए हमें निकलेंगे. ठीक है? ओके. वेलकम एवरीबॉडी. Good morning. Good morning. So, as you heard, our Sub-Inspector Amrish sir briefed you. Did you follow it? So, any kind of addiction, you should be charged. Let it be anything. Let it be mobile. Who doesn't watch mobile? Can raise hand. Who doesn't watch mobile? Who doesn't use mobile phone? कौन मोबाइल फोन नहीं देखते? सब देखते हैं. So everybody, even that addiction should be avoided. Now I request Vinod sir from Indian School to brief students. Sir, Vinod sir, please sir. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಥರ ನಾಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಮಾದಕ ತಡೆ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಕೆಜೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಲಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಸೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅರ್ಧ 50% ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 50% ಜನಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. स्टार्ट करेंगे पुलिस दो लाइन आगते दो लाइन आ जाओ ना
सभी एक साथ करो, खाली यहाँ से निकले तक डिजाइनर को बताओ, सबको बताओ। नहीं आ जाओ तुम्हें साथ में। नो ड्रग्स, ये ड्रग्स के बारे में ड्रग्स को रोकने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जो हमारे मोहल्ले के अंदर और हर जगह जो आम होती जा रही है, जो ड्रग्स हो, चरस हो, गांजा हो, तो इसे रोकने की एक फिक्र की जाती है। इसे रोकने का की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस ड्रग्स को किस तरह से रोके। हमें ना मालूम कि हमारे घरों के अंदर कब आ जाए। ड्रग्स से महफूज रहने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है। नो ड्रग्स, नशा छोड़ो
नशा छोड़ो जोर रहो No drugs! 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 साफ रहो मजबूत रहो साफ रहो मजबूत रहो रास्ता बनाने वाले ट्रेन जो है थोड़ा सा रास्ता बनाकर No drugs! 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 Drugs को हटाओ, देश बचाओ! Drugs को हटाओ, देश बचाओ! Drugs को हटाओ, देश बचाओ! आज जो है ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है कि हमारे मोहल्ले के अंदर जवानों से बचाना है हमारे देश को मजबूत करना है आप सबसे गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले के अंदर खड़ा करना मौलाना आसिफ साहब
मौलाना आसिफ साहब, मजहर शरीफ साहब, मजहर साहब, आ जाओ मौजूद हजरात, हमारे मोहल्ले से, हमारे ट्रक से और हमारे पुलिस स्टेशन से माशाल्लाह पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं। ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स को रोकने के बारे में कोशिश की जा रही है। ये हमारी कोशिश है, इसमें कामयाबी देना आप लोगों का काम है। आपके बच्चों को और आप तमाम के बच्चों को कोई बुरी लत पड़ने से बचाएं, बराए मेहरबानी से बुरी लत पड़ने से बचाएं। बहुत सारे बच्चे इस ड्रग्स के आदी बन गए हैं और इस ड्रग्स को बचाने के लिए हम तमाम मिलकर कोशिश करना है। एक दो तीन चार से नहीं होता, पूरे मिलकर कोशिश करना है। बराए मेहरबानी फरमाकर एक मजाक न समझे। ये लत, ये जो ड्रग्स की आदत जो है वो बहुत दूर तक ले जाएगी, आखिरकार वो मौत तक पहुंचाएगी। बराए मेहरबानी फरमाकर जो भी देखें आप पुलिस को कंप्लेंट दें और कोशिश करें कि आप ही उसे सीधे रास्ते पर लाने की। और हमारे साथ जुड़ गए, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सब लोगों को इत्तला देंगे कि ड्रग्स में जो जो नुकसानात हैं और जो जो हमारे खानदानों को नुकसान हो रहा है, जो फैमिलियों को नुकसान हो रहा है, उसे बचाएं। बराए मेहरबानी फरमाकर ड्रग्स को कंट्रोल करना नहीं बल्कि छोड़ देना है। सेफ रहो, मजबूत रहो, सेफ रहो, मजबूत रहो, सेफ रहो, मजबूत नौजवान, यहाँ तक के लड़कियां भी इसके अंदर शामिल मुब्तला हो रही हैं। हमें इसकी फिक्र करना है। अगर हमें फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे घरों के अंदर भी वो दाखिल हो जाएगा। इसकी कहीं पे भी अगर बुराई होती रहे, अगर कहीं पर भी अगर इसकी बुराई होती रहे तो सबसे पहले हमारे हाथों से रोकना है। अगर हमारे हाथों से रोकने के लिए नहीं हो तो जुबान से रोकना है। अगर जुबान से भी ना हो तो कम से कम आखिरी हिस्सा जो है दिल से बुरा समझना है। तो इस ड्रग्स का जो मुहिम है, ये जो चल रहा है, तो इसे रोकने के लिए ये मुहिम की जा रही है। कि गुजारिश है कि हर एक
इसके अंदर शामिल हो और इसकी फिक्र करें, इसे रोकने की कोशिश करें। ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, बल्कि हम सबका काम है। ಇದು ಯಾವ ತರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಮುಹಿಮನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಆದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖತಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಜಬೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವ ತರ ಮಜಬೂತ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಬೀದಿನಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. No drugs. Bisa. आवाज लगाओ आराम से पूरे बोलो यहाँ हाइट पर सामने दो भाई और जरा सामने दो
और जरा सा चले जाओ। दुनिया में जितनी अच्छी चीजें पैदा की हैं वो सारी चीजें इंसान के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल्लाह। दुनिया में जितनी चीजें अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई हैं वो सब इंसान के इस्तेमाल के लिए है और इंसान को हमने आखिरत के लिए बनाया। क्या बेहतरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है बताने का कि अल्लाह ने इंसान को आखिरत के लिए बनाया है। लेकिन इंसान तो इतना कमीना निकला कि वो आखिरत के लिए क्या, वो अपनी दुनिया के लिए भी नहीं हो रहा है, ना अपने माँ बाप का हो रहा है, ना समाज का हो रहा है, ना माशरे का हो रहा है। उसने एक नशे की इज्जत अपने जिम्मे क्या रख ली, उसने अपना सब कुछ, अपने जिम्मे जो हुकूक थे वो सब कुछ तबाह कर दिए। जो इंसान जीता है, जागता है और सबको जगाता है, सबकी फिक्र करता है और सबके हुकूक अदा करता है, वो इंसान पूरी तरह से इस दुनिया में हुकूक अदा करने के लायक और काबिल है जो नशे से दूर है। और जो इंसान नशे को इस्तेमाल करता है वो दूसरों की क्या हुकूक अदा करेगा, वो खुद अपने आप का मकाम और मर्तबा नहीं समझ सकता। जहाँ चाहे बैठ गया, जो चाहे खा लिया, जहाँ चाहे लेट गया। यहाँ तक कि इस दुनिया में इंसान को गद्दारी पर सबसे ज्यादा उभारने वाली चीज नशा है। इंसान अपने माँ बाप तक की परवाह नहीं करता, अपने बीवी के हुकूक की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों के खाने का इंतजाम की से बेपरवाह हो जाता है। ये सारी चीजें उसी वक्त होती हैं जब इंसान नशे में आ जाता है। जब इंसान नशे में आ जाता है तो ना उसे माँ की परवाह, ना बहन की परवाह, ना बीवी की परवाह, ना बच्चों की परवाह, सबसे बेखबर होकर के वो अपनी दुनिया में अलग चला जाता है। उसके जिम्मे जो हुकूक थे वो सब कुछ पामाल कर रहा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे के लिए फरमाया, उम्मुल खबाइस, तमाम बुरे चीजों की जड़ वो है नशा। एक मर्तबा आदमी नशे में आ गया, अब उसे तमाम अच्छी बुरी चीजों की तमीज खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों की भी, बीवी, सब चीज जो हुकूक उसके अपने जिम्मे थे, तमाम हुकूक उसने अपने पामाल कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नशे से बचाए, नशे की आदतों से बचाए, नशे की चीजों से बचाए। इस वक्त मुझे और आपको क्या करना है, नशे से अपने घर को, अपने महल्ले को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने अहले पूरे मोहल्ले को, और फिर जो चीजें नशे वाली हैं उन नशे वाली चीजों को लाकर जो जगह जगह बेचते हैं उन पर अपनी नजर चील की तरह रखें। अगर कोई आदमी ऐसा हमारे मोहल्ले में पाया जाता है जो नशे की चीजें लाकर हमारे बच्चों के दरमियान बेचता है, हम उस पर झपट पड़े, उस पर टूट पड़े और फौरी तरीके से सरकारी कार्रवाई करें, पुलिस के बंदोबस्त के साथ पुलिस को इत्तला करें और पुलिस के पास उस आदमी का केस दर्ज करें। ये सारी कामों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। नशा इस दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी और तबाही है। अल्लाह ताला हम सबको इस तबाही और बर्बादी से, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचाए। मैंने बुलेट करना है। आज 26 जून है, दुनिया भर एंटी ड्रग्स का अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जून है, आज जो है दुनिया भर में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। इसी की एक कड़ी पुलकेशी नगर पुलिस स्टेशन, फ्रेजेटाउन डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन, पुलकेशी नगर रेसिडेंशियल वेलफेयर ट्रस्ट, इंडियन स्कूल क्रेसेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आप सब के आगे अवेयरनेस, एंटी ड्रग्स अवेयरनेस क्या ये मार्च कर रहे हैं। इससे अवेयरनेस ये है कि कैसे अपने बच्चों को दूर रखें। ज्यादातर अगर सबसे पहले कोई एडिक्ट होता है तो वो पता चलता है अपने माँ को, माँ बहने ये उसकी कैसी हरकतें रहते हैं उसे जाने और उसे पहचाने फौरन। जो है ये एक मेडिकल मेंटल इलनेस है एडिक्शन, तो ये फौरी तौर पे डॉक्टर को बताएं या अपने घर के नजरात को बताएं कि कुछ फर्क दिख रहा है बच्चों में, थोड़ी बहुत भी तब्दीली दिखती है मिजाज में, फौरन जो है डॉक्टर के पास ले जाए। ये बस इसकी इलाज जो है उसे दूर रखना है और अच्छी सोहबत रखिए अपने बच्चों की। बच्चों के दोस्त जो है दोस्ती इम्पैक्ट करते हैं, बाहर जो स्कूल नहीं जाते वैसे बच्चों से दूर रखें। अगर स्कूल जाते हैं जाके आने के बाद उनको दूसरे स्पोर्ट्स में ट्यूशन में हर हमेशा नजर रखें। ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये लत जो है स्लम्स में है, क्रीम सोसाइटी में भी है, हर तबके में आ गया है आज ड्रग्स की लत। तो सबसे बड़ा इलाज जो है चौकन्ना रहे, बच्चों को दूसरों के साथ दूसरे बच्चों के साथ जुड़ने ना दें, ज्यादा देर हर हमेशा नजर रखें बच्चों को, अपनी हिफाजत अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। और बच्चा कुछ भी सीखता है तो माहौल को देख के सीखता है। आप सब जानते हैं कि माहौल कैसा है अभी, तो हर हमेशा बच्चों के ऊपर नजर रखें। किसी भी उम्र का बच्चा इस लत में ना पड़े, तो किसी भी उम्र का बच्चा ये लत बेशौक में पड़ सकता है। बस हमेशा माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। ऐसा अगर कुछ भी, अगर बच्चा देर से सोता है, देर से उठता है, हाथ लाल होते हैं या कुछ भी हरकत करता है, फौरन जो है एक साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास दिखाएं और जो करते हैं वो तजावीज देंगे। इसके अभी दवाएं भी बहुत मौजूद हैं और हर पब्लिक हेल्थ सेंटर में इसकी दवा मौजूद है। हमारे यहाँ डीजे मुस्लिम कॉलोनी में पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ से भी दवा ले सकते हैं। No drugs, no drugs! No drugs, no drugs! No drugs, no drugs! नशे को भगाएंगे। आज 26 जून है, दुनिया भर में एंटी ड्रग्स डे अवेयरनेस मनाया जाता है। उसी की एक कड़ी डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन, पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट और यहाँ के स्कूल जैसे इंडियन स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल और हमारे साथ उलमाए-ए-दीन भी हैं, मोहल्ले के जिम्मेदार भी हैं। और ये मार्च का एक ही मकसद है कि अवेयरनेस करें कैसे हम अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें। ड्रग्स एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन ये सब आज आम हो गया है। इसका एक ही इलाज है कि हम खुद भी उससे दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। अगर कहीं भी थोड़ा भी अगर लोड होता है, गुमान होता है, निशानी दिखती है बच्चों में, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो किससे मिल रहा है, वो किससे कहाँ जा रहा है, वो देखें। एक ही इलाज है, उससे जो है दूसरे गलत सोहबत से दूर रखें। बच्चों के दोस्त से ही ज्यादातर होता है। अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना सलाउद्दीन प्रशादी साहब से कि अपने कीमती तजावीज से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, आज यौम नशा मुखालिफ दिन है
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमारी नस्लों को नशे की बुरी गत से बचाए। एक मर्तबा जब आदमी नशा करता है तो गोया दूसरों के वो क्या हुकूक अदा करेगा, अपने आप से वो बेपरवाह हो जाता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है और कहाँ सो रहा है। वो अपने आप से बेपरवाह और बेफिक्र हो जाता है। सही है, सालिम है, उसकी दिमाग में फतूर नहीं है, वो उस वक्त तक अच्छा है और सबके हक अदा करने के लायक है, तो उसे न अपनों की परवाह होती है, न भाई बहन की परवाह होती है, न माँ बाप की परवाह होती है, न बीवी बच्चों की परवाह होती है। वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे का शिकार बनकर रह जाएगा और खुद वो समाज पर एक मुसीबत, क्या घर वाले उसे पालने पोसने वाले हो जाएंगे। वो जवानी की उम्र को, शादी की उम्र को और बड़प्पन को पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक वो एक खिलौने की तरह रहेगा कि बच्चों ने वहां फेंक दिया, बड़ों ने वहां फेंक दिया, इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजरेगी। इसलिए मुझे और आप सबको मिलकर के नशे से अपने आप को भी बचाना है, अपने माशरे के बच्चों को भी, नौजवानों को भी, बड़ों को भी बचाना है। नशा आज कोई स्लम की बात नहीं है, बल्कि अच्छी खासी जगह, बड़ी बड़ी जगह नौजवानों में और अच्छे इलाकों में भी पहुंच गया है, और सिर्फ मर्दों में नहीं, लड़कियों और औरतों में भी यह नशे की गति ज्यादा जारी हो रही है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप हमेशा से नशे की मुखालफत करते रहे, नशे के खिलाफ चौकन्ना रहे और हमेशा जानते रहे कि मैं और मेरे बच्चे और मेरे माशरे के नौजवान कहीं नशे की लत में पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे, इसका पूरा ख्याल रखें। बच्चा जीता जागता कैसा है, उसके हालात कैसे हैं, किससे मिलता है, किसके साथ बैठता है, ये सारी बातों पर नजर रखना माँ बाप का फरीजा है। अगर माँ बाप अपने चोंचले पूरे करने के लिए बच्चों को घरों से बाहर रखना या फोन देकर उनको बिजी रखना या जहाँ चाहे जाए उसे न पूछना, अगर इस तरीके से माँ बाप अपनी जिंदगी गुजारते रहे तो बच्चों की जवानियां कहाँ गुजरेगी किसी को पता नहीं, और वो बच्चे कल बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनने के बजाय उल्टा माँ बाप के बुढ़ापे में वो खुद बोझ बनकर बैठे रहते हैं। इसलिए मैं तमाम माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, नशे का जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से तकदीद करे, तकजीब करे, उसे झुलाए और उसे अपने माशरे में कहीं पनपने न दे। अगर कोई आदमी बाहर से नशा लाकर, नशे की चीजें लाकर यहाँ बेचने की, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
जो ये के मोहल्ले के अंदर नौजवानों के अंदर ड्रग्स की लत लग रही है। यहाँ तक के कॉलेजों के अंदर नौजवान लड़के लड़कियों के अंदर भी आम होती जा रही है। अपने अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, उनके निगरानी करें और इस ड्रग्स जैसे बुरी लत को इस पहले से भगाने के लिए, हटाने के लिए जो नामालूम कब हमारे घरों में अल्लाह ना करे आ जाए, इससे पहले इसकी फिक्र करें। मोहल्ले के अंदर से जो इसके ड्रग्स के मुब्तला हो चुके हैं उनकी हिफाजत करें और ड्रग्स को हटाएं। तो इस वजह से इसकी एक फिक्र चल रही है कि सारे से फिक्र करने के लिए इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट भी है, हमारा ट्रस्ट भी है और सिर्फ मेरा काम नहीं है बल्कि ये काम जो है हम सबका है। हम सब मिलकर इसकी फिक्र करेंगे तो इस बुरी लत से हमारे बच्चे बच जाएंगे। मोहल्ले वालों से गुजारिश है कि जो ड्रग्स का जो नौजवानों के अंदर लत लग रही है, सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां भी इसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अपने अपने बच्चों को अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें ताकि हर कॉलेज के अंदर, मोहल्ले के अंदर हमारे नौजवान इस ड्रग्स के इससे मुब्तला हो रहे हैं। तो इस वजह से इसकी फिक्र की जा रही है कि किस तरह से हमारे मोहल्ले के अंदर से इसे खत्म किया जाए और हमारे नौजवान बच्चों को इससे बचाया जाए। तो हमें ये चाह रहे हैं कि नौजवानों से भी जो इसमें लग चुकी है, जो नौजवानों से भी गुजारिश है जो इसके अंदर